السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ میں جو ایک بہت ہی بھیانک حادثہ ہوا، اور خاص کر ایسے ملک میں جو اپنے پیسفل کنٹری کے نام سے مشہور تھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ آخر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کیوں ہے؟ اس موضوع پر ہم نے آپ سے کل خطاب کیا تھا، جو پارٹ نمبر 1 تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کل ایک بات بتائی تھی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ یہ کہ نفرت کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ایسی ہے جو غیر معقول ہے، دوسری وجہ ایسی ہے جو معقول ہے، اور تیسری وجہ ایسی ہے جو فطری ہے۔ تو کل ہم نے آپ سے بات کیا تھا غیر معقول کی وجہ، آج بھی ہم غیر معقول پر ایک وجہ اور ہے۔ مسلمان 1980 کے بعد، غور سے سنیے گا، مسلمان 1980 کے بعد پوری دنیا میں اور اسپیشل ایشیا کے علاقے میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں، حالانکہ وہ تھوڑا سا طبقہ ہے، کوئی بہت بڑا طبقہ نہیں ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ ہم ہر کام اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر کے کریں، ہر کام۔ دنیا والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر فیلڈ میں دھرم کیسے گائیڈ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے ہمارے مذہب کو کمپیئر اور موازنہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے مذہب سے ہمارے مذہب کو کرتے ہیں تو ان کا مذہب اتنا ہلکا نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ دھارمک رہنا چاہیے، دھارمک رہنا چاہیے۔ تو ہمارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا دھارمک ہونا، ہمارا مذہبی ہونا، یہ ان کو کیا کر رہا ہے؟ نفرت دلا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول، یعنی جو لوگ نفرت کر رہے ہیں کہ دھرم ہر انسان کا پرسنل میٹر ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے دھرم پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ بھائی مثال کے طور پر پورے یورپ میں ایک ہنگامہ ہے پچھلے 2-3 سال سے۔ ایک عورت، مسلم عورت، حالانکہ ہے کتنی، بہت تھوڑی سی، ایک مسلم عورت کہتی ہے کہ میں شرعی حجاب میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا حجاب کھینچ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ننگی عورت، ہاف اسکرٹ پہننے والی عورت پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر حجاب میں رہنا چاہتا ہے، ایک عورت ہماری بہن حجاب میں رہنا چاہتی ہے، تو اس میں آپ کا وہ کیا نقصان کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرح ساری دنیا ہو جائے تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے۔ ایک گاؤں میں چاند نکلا، چاند تھا نہیں، ایک کانا آدمی تھا، ایک آنکھ کا، کہہ رہا ہے وہ چاند نکلا ہوا ہے۔ اب جو آنکھ والے تھے وہ کہہ رہے ہیں یار اس کی ایک آنکھ ہے اور کہہ رہا چاند نکلا ہے۔ اب ضد پکڑ لیا اس نے، تو اس نے کہا کہ بھائی چاند اس کو نظر آئے گا جس کی ایک آنکھ ہے۔ تو ایک صاحب نے ایک آنکھ اور کھول لی، کھول کر کے دیکھا تو چاند تو تھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یار ایک آنکھ کھول لیا پھر بھی چاند نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا بھائی یہی بات بولو کہ چاند نظر آ رہا ہے تاکہ یہ کانا کانا جو روز چڑھاتے ہیں ہم کو نا، وہ چڑھانا بند ہو جائے۔ گاؤں میں 2, 4, 10, 20 کانے ہو جائیں تو چڑھانا بند ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے عیب دیکھیں، گھر کے ایسا ہوا نہیں ہوگا، جس نے بھی ایک کہانی بنائی اس میں ایک نصیحت ہے کہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے طالب علم کیا کرتا ہے؟ ایک شرارت کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک کو اور لے لیتا ہے۔ لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لینے کی وجہ یہی ہوتی ہے
कि अगर हम पकड़े जाए तो अकेले नहीं रहे, हमारे साथ पूरी हमारी टीम रहे, तो बात क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो ये यूरोप का जो मामला हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी तहजीब अपनाई, तो वो अपने फायदे के तहत, फायदे से बड़ा नौजवानों ने अपने फायदे के तहत, नौजवान लड़कियों ने अपने फायदे के तहत, जब कभी लॉजिकल उनसे बात करें तो कभी जवाब नहीं देते। मेरी बच्ची पहली क्लास में पढ़ती थी, बल्कि यूकेजी में थी, मेरे स्कूल में पढ़ती थी, क्रिश्चियन मैनेजमेंट था, तो सारी बच्चियां स्कर्ट पहनकर जाती थी, छोटी बच्चियां सब यूकेजी की, स्कर्ट के नीचे शलवार पहनने के बजाय चड्डी पहनती थी। तो प्रिंसिपल ने एक दिन मुझसे, मेरे क्लास टीचर से कहा कि एक बच्ची सिर्फ ऐसी है पूरे क्लास में जो शलवार पहनती है, लेकिन वो है सिराज भाई की बच्ची। तो आप उनको समझाएं। क्या समझाएं? कितनी सेंसिटिव वे में उसने बात किया क्लास टीचर से। उसने कहा कि देखो सिराज साहब को बताओ कि मौसम यहाँ गर्म है, दुबई का माहौल है, अभी बच्ची छोटी है, ठीक है आपके इस्लाम में अलाउड नहीं है, लेकिन जब बालिग हो जाएगी तो आप अपना वो सब जो कानून आपका है नाफिज कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो बच्ची छोटी है, अगर वो चड्डी पहनकर आ जाती है तो इसमें कौन सा इस्लामी लिहाज से गलत हो रहा है। तो टीचर ने कहा कि मैम ठीक है, मैं सिराज भाई से बात करूंगी। वो आई मेरे पास, तो हमने कहा कि किसने कहा? उन्होंने कहा प्रिंसिपल कह रहे थे। हमने कहा लेट अस गो एंड टॉक टू प्रिंसिपल से चल के बात कर। उन्होंने नहीं, उन्होंने ये कहा है कि तुम समझाना, तुम कुलीक हो, और जब मैं बात करूंगी तो वो ऐसी लॉजिक पेश करते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं रहता है, इसलिए आप बात करके उनको समझा दीजिए। तो मैंने कहा भाई अगर लॉजिक है, मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम भी पढ़ी लिखी हो, हम लॉजिक पेश करें तो हमारे लॉजिक को काटो। हमने कहा कि मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूं, आपको चलना है तो चलिए। उन्होंने कहा कि, हमने कहा तुम नहीं जाओगे तो भी मैं जाऊंगा, मैं पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने सिंपैथी शो किया है। खैर वो मजबूर होकर बेचारी बॉम्बे की टीचर थी, वो चली गई हमारे साथ। हमने कहा कि मैम आपने ऐसा ऐसा कहा, तो मैंने पहले बहुत उनको अप्रिशिएट किया ताकि ये पूरी बात अपनी कहें। हमने कहा आपने ये बात कही है, यकीनी बात है गर्मी बहुत होती है, तो वो समझी कि हमारे फेवर में बात करने आए हुए हैं सिराज साहब। तो हमने कहा मैम साहब ये बताइए कि उसी क्लास में लड़का बैठा है, उसको गर्मी नहीं लगती पैंट पहने हुए? सेम टेम्परेचर में एक क्लास है, एसी लगे हुए हैं सारी क्लास में, लड़का पैंट पहने बैठा है, उसको गर्मी नहीं लग रही है, लड़की शलवार पहने बैठी है, गर्मी लग रही है। हमने कहा मैम शलवार का कपड़ा उमूमन पैंट के कपड़े से पतला होता है, तो ये क्या लॉजिक है आपकी कि लड़कियों को नंगा रखा जाए तो आप सिंपैथी शो कर रही हैं, और उस बेचारे को जिसको नंगा रहने की इजाजत है छोटे में, उसको आपने पहना रखा है। अब वो टीचर से फिर पड़ी, उन्होंने कहा मैं तुमसे पहले बोली थी कि इनको नहीं लेता रहो। हमने कहा मैंने जो बात लॉजिक की, आप लॉजिक का जवाब लॉजिक से दीजिए। तो बात क्या है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अब खड़े हो जाइए, यहाँ सैकड़ों हजारों लड़के रोज गुजरते हैं, कोई लॉजिक नहीं पेश कर सकता कि एक बच्ची को स्कर्ट पहनाकर क्यों भेजा जा रहा है स्कूल, कोई वजह होनी चाहिए। ये जो बातें हैं, हम लोगों ने इन बातों पर जो एतराज किया, हालांकि छोटा तबका है। मेरी बच्ची 11वीं में पढ़ती है इस स्कूल में, हिजाब लगा के जाती है, प्रिंसिपल ने उसको बहुत डांटा। अच्छा उधर अती भी है, तो उसने सोचा अब्बा को लाएंगे, अब्बा फिर बहस करेंगे, तो फिर वो हमारे ऊपर नजला गिरेगा। उसने नहीं बताया, उसने आजिज कर दिया, बहुत ज्यादा उसको सताया। तो उसने मजबूर होकर के मम्मी से कहा अपनी, उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ठीक है चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। तो अयाज ने कहा कि भैया मैं बात कर लेता हूं, आप कहां जाएंगे। तो वो जिसके जो मैनेजर थे वो उनके बड़े दोस्त थे अयाज मियां के, उन्होंने उनसे जाकर बात किया। तो उन्होंने मतलब नहीं हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये सब बात हुई। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप अगली साल हमारे यहां एडमिशन नहीं लीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है चले बात करने, कहा नहीं अब आप नहीं जाइए।
वो आपको देखकर वैसे भी आप सिर्फ गाड़ी पे बैठे रहते हैं तो वो टीचर सारे घबराते हैं आपसे। हमने कहा मैं कौन तो हूँ भाई, सिर्फ एक रुमाल ही रखे हूँ, बकिया क्या है मेरे पास, रुमाल का इतना खौफ है। आप बताइए, देखिए मामला कैसे हुआ। हमारी बच्ची बहुत सीधी है, बहुत पढ़ने में भी ठीक है माशाल्लाह, उसका इतना अच्छा बिहेव हुआ कि अभी एग्जाम से 2 महीना पहले उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आप अगले साल हमारे स्कूल में नहीं रहिएगा, लेकिन मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूं कि आप मुझे माफ करें, मेरे स्कूल में आप पढ़ें, आप हिजाब लगा करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें हमारे स्कूल में। क्या है कि हमने उनसे कहा, हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लिख कर लेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये सब बात हमने कहा तुम अभी नहीं करना, जब मामला आएगा, जब वो टीसी देने लगेगी तो हम चलेंगे। खैर उससे पहले उसके बिहेव से अब वो खुद कह रही है, पहले कह रही है प्रिंसिपल साहब कि लाइफ है, इंजॉय करना चाहिए। तो उसने अपने से जो हो सका बेचारी ने जवाब दिया कि उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा मैम इंजॉयमेंट की क्या डिफिनेशन है, मैं हिजाब पहने हुई तो इंजॉयमेंट के खिलाफ है, कल मैं जो है वो जम्पर पहन के आऊं तो कहें आप इंजॉयमेंट के खिलाफ है, तो हम कहां तक कपड़ा उतारेंगे कि इंजॉयमेंट कराए लोगों को। उसने कहा कि हम कहां तक कराएंगे, ये उसका कोई बताइए, आप क्राइटेरिया बताइए, लाइन खींचिए। उसकी बात समझ में आई, उसके प्रिंसिपल की बात समझ में आई कि इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई। ब्लाउज छोटा होते होते वहां तक पहुंच गया कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको उतारने के अलावा कोई शक्ल नहीं रह गई। उसी इंजॉयमेंट में तो यहां तक पहुंचा, लेकिन आपके कैरेक्टर ने उसको मजबूर किया। उसने कहा आप मेरा स्कूल नहीं छोड़िएगा, आप मेरे स्कूल से फाइनल कीजिए। हाँ आप जाना खुद से चाहे जाए, लेकिन मैंने जो बात कही थी मैं उसकी माफी मांगती हूं और मैं आपको नहीं हटाना चाहती अपने, लेकिन स्टैंड लेना पड़ता है। अब अगर स्टैंड लेने के बाद उसके दिल में नफरत ही रहेगी, यही मामला खड़ा हो गया है कि जो 2-4 अब बहुत सी मुस्लिम लड़कियां आती हैं, कम से कम 40-50 आती हैं। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हारी साथ क्यों प्रॉब्लम है? कहा अब्बा आती हैं और गेट में आते ही हिजाब उतार देती है सब, तो उन लड़कियों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या हो गए, अब नफरत किससे होगी? एक ही है सिर्फ, लेकिन नफरत तो होगी लड़कों को कि इतने लोगों ने जो है वो हमारी बात मान लिया और सरेंडर हो गए। ये जो ना सरेंडर होने वाले लोग हैं, जिनको इसने अपना दीन प्यारा है, कुछ भी हो जाए तो यकीनी बात है कि आपकी जो नफरत है वो गैर माकूल है। हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे हिजाब पहन करके, हम हिजाब पहन करके आपको एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहे, बस इतना हो रहा है। अगर औरत इसीलिए पैदा हुई है कि दुनिया वालों को एंजॉयमेंट कराए, यही बोल दो भाई सारी दुनिया वालों, तब तो तुम कहते हो कि औरत बड़ी इज्जत वाली है। कौन सी इज्जत की बात है कि एंजॉयमेंट के लिए उसको रखा जाए और फिर भी कहा जाए हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं? तो एक बुनियादी वजह है हमारा धार्मिक होना। हमारा धार्मिक होना उनके लिए कुछ भी नुकसान नहीं करता है, उसके बावजूद भी ये गैर माकूल बात है कि जिसकी बुनियाद पर वो हमसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। हम उनको सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि अगर वो क्यों धार्मिक होना चाहते हैं, उनका भी तो धर्म है। चक्कर क्या फंसा हुआ है कि जिस धर्म के मानने वाले हैं, अगर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले, जिसके भी मानने वाले हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने लेडीज का कोड ड्रेस क्या रखा है क्रिश्चियनिटी में, मालूम ही नहीं। अपने मजहब पर वो तो धार्मिक सिर्फ 2 लिहाज से हैं। नंबर 1 संडे चर्च चले जाना है और अखलाक पेश कर देना, बकिया कानूनी लिहाज से तो सारी दुनिया कोरी है, उसे पता भी नहीं बेचारी को कि क्या करना चाहिए। अब वो चाहते ये हैं कि हमारा ये लीकेज पैक रहे, लोगों को नहीं मालूम हो कि हमारे मजहब में होना ये चाहिए था कि अप्रिशिएट करते। हमारे पास यहां पर आए 3 लोग फादर, ऐसी किसी बात को दावत देने के लिए, ऐसी बात को छुड़ गई, तो हमने सोचा कि इनको पैगाम देना चाहिए। हमने कहा कि क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में बहुत बुनियादी फर्क है। उन्होंने कहा नहीं कोई फर्क नहीं है, वी बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन लास्ट डे, यू बिलीव इन लास्ट डे, ऐसे वो बताने लगे। हमने कहा नहीं, हमारे तुम्हारे दरमियान में एक जो बड़ा फर्क है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कैसे रहा जाए, ये बाइबल गाइड नहीं करती है।
हमने कहा नहीं बहुत, हमने कहा चलिए एक मसला मैं पूछता हूँ आपसे। हमने कहा आपका नाम क्या है? हमने कहा आपके फादर हयात हैं? नहीं, फादर डाइड। हमने कहा जब फादर मरे तो फादर की प्रॉपर्टी आपसे कैसे डिवाइड किया? आपकी बाइबल के तहत डिवाइड किया या आपका जो दिल चाहा डिवाइड किया? अब वो जो दूसरा था वो प्रिंसिपल था और फादर भी था, उसको ऐसे कर रहा है, मैं देख रहा हूं। हमने कहा नहीं, आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, लेकिन बताना है आपको कि आपने डिवाइड कैसे किया प्रॉपर्टी। तो उसमें जो होशियार था उससे समझ गया कि इसने हमारी दुखती रख को पकड़ लिया। उसने कहा देखिए इस किस्म के कानून हमारे पास नहीं है। हमने कहा अच्छा चलो जिस किस्म के कानून है चलो उससे बात कर लेते हैं, कानून से बात कर लेते हैं। आप अखलाकियात को, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, आलमी सच्चाइयां होती हैं, आप उसको मजहब जानते हैं, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके नजदीक है। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, देना नहीं, सबके यहाँ किसी बात में नहीं होता है झूठ बोलो चोरी करो। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये सिर्फ इस्लाम में है। अब जब हमने उनसे इस किस्म की बातें की तो थोड़ी देर के बाद ठीक है फिर कभी मिलेंगे और आपसे बहुत अच्छा लगा, वो तो एक फॉर्मेलिटी वाले जो जुमले होते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो हमने कहा ठीक अच्छा लगा, तो फिर आइएगा कभी। आज तक वो आए नहीं आएंगे। तो ये हकीकत में उनके मजहब की प्रॉब्लम क्या है, हमको धार्मिक होना देखकर उनको अच्छा इसलिए नहीं लगता कि वो धार्मिक अगर होना भी चाहें तो उनके पास कोई, जिसको अपनी जबान में हम लोग कहते हैं कि भंडवल नहीं है, पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैसे वो कैसे बन जाएंगे मजहबी। कोई भी मजहबी बनना चाहे, ये बेचारे जो हमारे आरएसएस के लोग हैं, ये जो हिंदुत्व की रट लगाते हैं, कभी संजीदगी से इनसे पूछ ले कि हिंदुत्व किस किताब पर बेस करेगी? वेद पर करेगी, पुराण पर करेगी, रामायण पे करेगी, भगवत गीता पे किस किताब पर बेस करेगी? किसी किताब जो आज भी छपी हुई है, राइटर का नाम नहीं लिखा है, उनको ये भी नहीं मालूम है। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमसे नफरत करने का, कि हम धार्मिक रहना चाहते हैं और लोगों को धर्म से नफरत है, क्योंकि उनके धर्म में धार्मिक रहने के उसूल मौजूद नहीं हैं। लिहाजा ये गैर माकूल बात है जिसकी वजह से आप मुझसे नफरत करते हैं। इसमें हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि अगर आप चाहें, आप कोशिश करें कि हमको धर्म से छोड़ दें, हम अपने धर्म की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तीसरी चीज, एक बड़ी बुनियादी चीज है गैर माकूल। गैर माकूल पे बात चले, अभी माकूल पे नहीं आई ये बात। गैर माकूल में जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये सब हमारे निजाम की वजह से इनके अंदर हसद और जलन पैदा हो गया है। वो हसद और जलन है जो नफरत की शक्ल में आ रहा है। वो क्या है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग इस्लाम की हक्कानियत को समझ पा रहे हैं, ये पहली वजह। अगर नहीं समझते तो पिछले 25 साल 30 साल में जितना किताब पढ़ी गई इस्लामी लिटरेचर, जितना इस्लामी लिटरेचर छपा, जितना लोग मुसलमान हुए, उसका कभी नहीं हुए। इस्लाम अपना जो लोहा मनवा रहा है ना, इन लोहा मनवाने को रोकने के लिए वो कोई चाहते हैं कि बंद बांधा जाए। मैंने आपको कल भी बताया था कि बंद नाम है ताकत का, ताकत का बंद बांध करके आप इसको रोकना चाहते हैं। ये ताकत की बुनियाद पर आया होता तो ताकत की बुनियाद पर रुक जाता। ये आया है इल्म की बुनियाद पर, फितरत की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर। इसलिए आप अंदाजा करें कि जिसकी पहला रेवलेशन, जिसकी पहली वही में 2 लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, कलम का और इक़रा का। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कलम का भी जिक्र हो रहा है, 2 मरतबा इक़रा का भी जिक्र हो रहा है। ये पहला रेवलेशन है। तो जिसकी बुनियाद में पहले कलम का जिक्र हो, इल्म का जिक्र हो, पढ़ने का जिक्र हो, तो वो बुनियाद ऐसी है कि जिसको ताकत के बंद से रोका नहीं जा सकता। तो ये इस्लाम की जो हक्कानियत है, ये एक हद तक ऐसी हो गई है कि लोग इसका कोई जवाब नहीं पा रहे। जब आदमी नहीं जीतता है, बच्चा नहीं जीतता है छोटा, तो बड़े बच्चे से जब लड़ाई होती है, छोटा बच्चा नहीं जीतता है, तो छोटा बच्चा कचकचा के दांत काट लेता है। वो दांत काटने का मतलब ये नहीं कि मैंने तुमको हरा दिया, दांत काटने का मतलब है कि मैं हार गया। वो तभी दांत काट लेता है। ये दांत काट रहे हैं। अच्छा,
पूरी दुनिया में 3 ही चीज, गौर से सुनिएगा, पूरी दुनिया में 3 ही चीज असल है, रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार बने, पार्लियामेंट हो, सबका एक यही काम करना है, रोटी, कपड़ा और मकान। इस्लाम में 1980 के बाद आपको मालूम है कि इस्लामिक बैंकिंग 100 गुना ग्रोथ कर गई इस वक्त, आज की तारीख में। जो 1980 में एक फार्मूले के तौर पर पेश किया गया था कि इस्लामिक बैंकिंग भी एक चीज है, उनको ये हुआ कि ये मस्जिद के लोग माशियात के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान की बात पर आ गए कि रोटी, कपड़ा और मकान भी कैन बी सॉल्व बाय द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन। ये उनके एकदम पल्ले से बाहर बात हो गई कि हम ये समझ रहे थे, लोग समझ रहे थे कि इस्लाम नाम है चंद जंतर मंतर, चंद इबादत सज्जा कर लेने का नाम है, लेकिन ये तो रोटी, कपड़ा, मकान की बात कह रहे हैं कि वो भी इस्लामी तर्ज पर हल किया जा सकता है। शुरू में जब आया दुबई इस्लामिक बैंक आया, सबसे पहले 1980 में गालिबन आया, खूब मजाक उड़ाया गया, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, देख लेना बगैर सूद के कैसे चल जाएगा। वो आर्टिकल आते थे, मैं उस वक्त BA फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, बड़े आर्टिकल आते थे। अब आप अंदाजा करें 80 से लेकर के 2019 तक तकरीबन 40 साल हो रहे हैं। 40 साल में इस्लामिक बैंकिंग 100 गुना आगे बढ़ गई, जो उसका टर्नओवर है दुनिया में, परेशान है लोग। तो अब सवाल ये है कि दस्तूर भी इनके पास मौजूद और रोटी, कपड़ा और मकान के भी उसूल कुरानी और लिहाज से इनके पास मौजूद है। ये जो हमारी हक्कानियत है, इस हक्कानियत की बुनियाद पर बांध नहीं बांध पा रहे हैं तो कचकचा के दांत काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी जो नफरत है ये गैर माकूल है। अच्छा, एक आदमी सच्चा है, एक आदमी को लोग फॉलो करते हैं, मतलब मुझसे लोग मोहब्बत करें तो बताओ मेरी क्या गलती है? कि मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मुझसे 100 लोग शहर के मोहब्बत करें, आप मुझे इसलिए आकर के 4 हाथ मारें कि मौलाना आपसे लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, आप बदले में क्या कर सकता हूं? अरे यार, मैं तो बोला भी नहीं मुझसे मोहब्बत करूं, फिर भी लोग मुझे फॉलो करते, तो मेरी क्या गलती भैया है? अगर इस्लाम की हक्कानियत को लोग फॉलो करना चाहते हैं, उसकी हक्कानियत के पीछे चलना चाहते हैं, तो उस इस्लाम की क्या गलती हुई? ज्यादा मारो उनको जो फॉलो कर रहे हैं। यार उनको मारोगे तो वो भी मारेंगे, तो तुम उनको मार रहे हो बेचारे जो गरीब हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी जो है वो हैसियत कम, आप उनको मार रहे हैं। असल जिनको मारना चाहिए उनको मार नहीं पा रहे हैं। वो मुहावरा एक है कि धोबी चले गए गधे काटने थे, गधे को जाकर के मार रहे हैं। अरे भाई, जो गलती हुई तो धोबी ने की है, धोबी के पीछे आपना पड़कर गधे को मारना शुरू कर रहे हैं। तो अगर इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम से लोग मोहब्बत कर रहे हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये अजीबो गरीब बात है कि भाई आप उनसे प्यार क्यों करते हैं, उनके आप क्यों फॉलोअर हैं, उनके आप फैन क्यों हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये एक गैर माकूल बात है, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये अब एक ही शक्ल हो सकती है कि हम ऐसी हरकतें शुरू करें कि लोग इस्लाम से नफरत शुरू करें, हालांकि कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग फॉलो कर रहे हैं। हम तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अभी आएगी बात, जहां पे माकूल पर हम बात करेंगे वहां आएगी कि हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लोग हमसे नफरत करें। उसके बावजूद भी नफरत करने वालों से बड़ी तादाद या तो न्यूट्रल की है और या इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की है। ये परसेंटेज बहुत थोड़ा सा है, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव है, अपने असरात दिखला देता है, लिहाजा हम जैसे लोग मजबूर हैं कि इस टॉपिक पर बात की जाए। चौथी चीज गैर माकूल में उनको ये समझ में नहीं आता। अभी देखिए, हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब योगी साहब हैं, पिछले मरतबा उन्होंने कहा कि भाई देखो होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो जुमा को आगे कर। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इस बार सैटरडे को फ्राइडे मान लिया जाए। कैसे हो जाएगा यार, सैटरडे को फ्राइडे मान लिया जाए? या इस बार थर्सडे को जुमेरात को जुम्मा मान लेते हैं और जुमा वाले के दिन जुमेरात कर लेते हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी है, कह रहा है इसको आगे कर लो क्योंकि वो फिक्स है, वो नहीं हो सकता, ये साल भर 52 आता है। उनके दिमाग में असल प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताता हूं। असल प्रॉब्लम ये है कि वो ये जानते हैं कि मजहब को स्कॉलर तब्दील कर सकते हैं। असल उनके दिमाग में बात है, क्योंकि उनके यही हो रहा है। तो उनके लिए ये बड़ा आसान काम है
भाई रोज करते रहते हैं, आपको मालूम है 365 दिन है। कितने दिन है साल में? 365 दिन है, 2000 त्योहार है। पंडित बैठा हुआ बोल देता है कि अब की ये त्योहार 11 बजे बजाय 9 बजे से लगेगा। कुरान ने जिक्र किया है कि वो लोग भी ये करते थे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। महीने को, अब जैसे ये रजब का महीना चल रहा है, कहते देखो ऐसा करते हैं कि रजब को एक बार लेके चले जाते हैं शव्वाल में, और शव्वाल को जल लेकर आ जाते हैं, करते थे। तो ये उनके दिमाग में थी कि ये इंसानी बस में है मजहब को तब्दील करना। हमारा फार्मूला क्या है? हमारे लिए तो नबी को कह दिया गया है, जब उन्होंने कुफारे कुरैश से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत टाइट है, कुरान मजीद जो है बहुत हमारे लिए सख्त है, तो आप इसको तब्दील करो। उन्होंने कहा भाई मेरे बस में नहीं है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में नहीं है तो ये हम जैसे गधों के बस में कैसे हो सकता है? हमारी क्या गिनती है नबी के आगे? नबी को यह अख्तियार नहीं दिया गया कि वो शरीयत को बनाए, बल्कि वो नबी जो अल्लाह ताला कहता है वो नबी क्या करता है, नाफिज करता है। इनके दिमाग में ये बात कहीं आ पाती है, वो समझते हैं कि मजहब को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जरूरत के तहत, टाइम के तहत क्या करना चाहिए, इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि तब्दील कर ले। उनकी बात हमारे लिए बहुत गैर माकूल है, वो इसको बहुत माकूल जानते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। फिर डे 1 से आपका मजहब तब्दील है, आप चाहे 100 मरतबा और तब्दील कर लो, क्योंकि पहले दिन से जहां से आप शुरू किया वहीं पे तब्दील वाला तुम्हारे हाथ में आया है। नहीं समझे मेरी बात? जिस दिन से आप अपने मजहब पर अमल कर रहे हैं, पहले दिन से भी जो कॉपी आपको पहली कॉपी मिली वो क्या है? वही डुप्लीकेट है। जब तुमको ये यकीन है कि हमारी पहली कॉपी ही डुप्लीकेट है, तो उसके बाद तुम चाहे 100 मरतबा डुप्लीकेट को डुप्लीकेट बनाते रहो। हमारा यकीन है कि हमारी पहली कॉपी क्या है? ओरिजिनल है, लिहाजा हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? दोनों में फर्क हो गया ना। क्या हमारा बेस ओरिजिनलिटी पर है, तुम्हारा तुम खुद कैसे हो? जो उनके स्कॉलर्स होते हैं, ये तो नीचे वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जो स्कॉलर्स होते हैं, विवेकानंद जैसा आदमी कहता है कि हिंदू धर्म की परिभाषा करना बहुत मुश्किल काम है। हिंदू धर्म की परिभाषा करना बहुत मुश्किल काम है। ईसाई मजहब कहता है कि हमारे पास 8 बाइबल की कॉपी है। 8 बाइबल तो एक ही नाजिल हुआ है, इंजील एक ही नाजिल हुई है, बाइबल नहीं कहिए, इंजील कहिए, इंजील तो एक ही नाजिल हुआ है। 8 कॉपियां अलग अलग हैं। बरनबास कहता है कि मेरी इंजील जो है वो ओरिजिनल है। अब सब कह रहा है ओरिजिनल, हर आदमी ये जानता है, कहता है कि ये बताना बहुत मुश्किल है विच वन इज ओरिजिनल। तो तुम्हारे बारे में भी तुमको मालूम है कि हमारे पास जो पहली कॉपी मौजूद है, अच्छा सबके पास तर्जुमा मौजूद है, ओरिजिनल मौजूद नहीं है। अगर वो अभी भी हमारे पास उर्दू की बाइबल है, रखी है, हम तो कोई कहे कि कोई क्रिश्चियन आकर कहे कि मौलाना साहब आप इसको जरा देख लीजिए तर्जुमा कैसा है, तो मैं जब तर्जुमा चेक किया जाएगा तो किस चीज से चेक किया जाएगा? ओरिजिनल से ना। हम बोलेंगे इसका ओरिजिनल लेकर आ जाओ, वो ओरिजिनल लेकर आएंगे, अंग्रेजी वाला खुद तर्जुमा है। हमने कहा भाई इसका ओरिजिनल लेकर आ जाओ, वो लेकर के आ गया जर्मनी वाला, फिर ओरिजिनल लेकर आ जाओ। जो भी कॉपी दी जा रही है कहां से चेक की जाए? भाई बच्चों को तर्जुमा कराया जाता है इस मदरसे में है? अब वो उस्ताद के पास दोनों कॉपियां होती हैं, जिससे तर्जुमा किया गया है, जो तर्जुमा किया गया है, वो वहां देख करके ये बताता है कि तर्जुमा सही है कि नहीं है। ऐसे आपने कोई भी आर्टिकल लिख कर रख दिया हो और आप कहें चेक कर ले, तो ठीक है भाई चेक कर लेंगे ग्रामर की क्या गलती है क्या नहीं, लेकिन ओरिजिनल अगर आप तर्जुमा किए हुए हैं तो ओरिजिनल होना जरूरी। ओरिजिनल मौजूद ही नहीं है। ओरिजिनल मौजूद हमारे पास अगर ये मामला फंस जाए कुरान कभी फंस जाए खुदा न खास्ता, तो हमारे पास आज भी 3 से 4 कॉपी वो मौजूद है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी है। वो कॉपी मौजूद है, अपनी ओरिजिनल पेज में मौजूद है, उस सफ़े पर मौजूद है जिस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का खून गिरा हुआ है, वो पेज तक खुला रखा हुआ है। आप जाइए चेक कर लीजिए। क्यों नहीं जाते चेक करने? उन्हें पहले से मालूम है कि ये जो छपी भी है ये सब ओरिजिनल है। अब हमारे पास जब ओरिजिनल है तो मैं क्यों चेंज करूं अपने मजहब को? आपको तो मैं मशवरा देता हूं कि वक्तन फवक्तन चेंज करते रहो, क्योंकि तुम्हारा पहले दिन से चेंज वाला ही वर्जन मौजूद है और हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। लिहाजा गैर माकूल बात आप कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से कि जिसके पास ओरिजिनल स्लिप मौजूद है, उसको मशवरा दिया जाए कि आप क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी चेंज करिए। हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम नहीं चेंज कर सकते। ईमानदारी से बोल, मैं तुम्ही को जज बना देता हूं। जो लोग हमारे हम तुम्ही को जज बना देते हैं कि एक के पास ओरिजिनल कॉपी है और एक के पास डुप्लीकेट है, मशवरा किसको दिया जाएगा? आज एक साहब आए यहाँ, कहा कि आप अपनी तंजीम में फला साहब को सेक्रेटरी बना दीजिए,
تو میں نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف آپ سے ایک بات ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا آپ کی نگاہ میں وہ بندہ ایماندار ہے، آپ بولے اگر وہ ایماندار ہے تو میں سیکریٹری چیئرمین بنا دیتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کو میں جج بناتا ہوں، آپ ہی ہماری اس سنستھا کا چیئرمین بنا دیجئے ان کو اگر وہ ایماندار ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایماندار ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہوں وہ ایماندار ہے، تو اگر صحیح میں انصاف پسند ہوگا بندہ تو کیا کرے گا؟ ہم اسی کو جج بنا دیتے ہیں کہ آپ ہی جج بن کر بتا دیجئے کہ ہم اپنے مذہب کو چینج کریں یا نہیں چینج کریں، جبکہ ہمارے پاس اوریجنل اسکرپٹ کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہ غیر معقول بات ہے جس کی وجہ سے آپ نفرت کر رہے ہیں۔ آخری بات کہیں گے، یہ جو مسلم ممالک میں 1960-65 کے بعد تیل نکل آیا، اچھا تیل ہم نے نکالا ہے؟ ارے یار ہم نے نکالا تیل جس نے نکالا اس سے تو لڑ نہیں پا رہا، تیل کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ اب تیل نکل آیا، تیل نکلنے کے بعد یہ کتنی جنگ ہے۔ وہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، ابھی کل اس کی میں ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تو یہ لڑائی ہے، تم لوگ مسلمانوں بے مطلب سمجھ لو لڑائی صرف پیٹرول کی ہے۔ لڑائی کس کی ہے؟ پیٹرول کی۔ اب پیٹرول جب نکل آیا، اچھا یہ ہم کہہ رہے ہیں ایک مشورہ اور بھی ان کو ہم دینا چاہتے ہیں جو لوگ اس پیٹرول پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں ان سے بھیا منا کہہ کر کے 2-4-10% کہہ دو بھیا اتنا ہم کو دے دو، ہزاروں جگہ ملک بھیک مانگتا ہے تو دے دیں گے، شریف لوگ ہیں دے دیں گے، لیکن تم چاہتے ہو کہ 100 ہم لے لیں اور ان کو 0 کر دیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی جس اللہ نے ان کے لیے نکالا ہے وہ کیوں چھوڑ دیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ آفر رکھا لوگوں نے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں تو یہ محاصرہ ختم کر دیا جائے گا، ہم آپ کو نہیں ماریں گے، قتل نہیں کریں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو میں نے مانگا نہیں ہے، اس خلافت کو میں نے مانگا نہیں ہے، مجھے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بھلے مارتے آپ مجھے۔ تو یہ چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، آپ اس گفٹ کو بھیا منا کہہ کے تم بھی 50% لے لے، بھیا ہمارا بھی خرچہ چلے تیرا بھی خرچہ چلے، لیکن تم چاہ رہے ہو کہ 100% لے لیں۔ اب وہ 100% جب نہیں دے رہا ہے تو یہ کیسے کہیں کہ ہم کو پیٹرول نہیں دے رہا میں مانگ رہا ہوں؟ یہ جملہ تو بول نہیں سکتے کیونکہ وہ تو راز کی بات ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی نفرت پیدا کی جائے کہ اس پیٹرول پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اب اس میں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، تو پیٹرول کا نکلنا بھی کیا ہو گیا ہے، وہ نفرت کی ایک وجہ ہے۔ اس میں بھی میں بھیا کیا کر سکتا ہوں، میں نکالا ہوتا تو جا کر کے ہم بند کر دیتے، سارے پیٹرول کو کیا کر دیتے، بند کر دیتے۔ اگر ہم نے نکالا ہوتا کھود کر کے، ہم نے کھود کر ایک بھی نہیں نکالا، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث پہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سونے کی کچھ مچھلی ٹائپ چیزیں بارش ہوئی، صحیح حدیث ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں غالباً ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اس کو بیننے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو نبی، آپ کو سونا ہونا کیا، چھوڑو۔ ارے انہوں نے کہا اللہ کی نعمت ہے یار، اللہ کی نعمت ہے، ہم اس اللہ کی نعمت سے کس کو انکار ہے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا معاملہ بگڑا ہے۔ سب کا مل کر کے اسلام کو دستور حیات ماننے والوں کا تھوڑا سا پرسنٹیج دنیا میں ہوا ہے۔ اس دستور حیات کو جب تک پہلے ہوتا کیا تھا، دیوالی بھی مناتے تھے، ہولی بھی مناتے تھے، ابھی بھی منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہو گیا، منا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ منانا نہیں چاہیے، بول دیتے ہیں، مناتے بھی ہیں لیکن بولتے ہیں نہیں منانا نہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیے ہیں کیا کہ لہٰذا ہم قطعی نہیں منائیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، سب مناتے تھے تو کوئی لفڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا طبقہ یہ بولنا شروع کر دیا کہ بابو ہم جو ہے نا وہ ہولی کا چڑھاوا والا مٹھائی نہیں کھائیں گے، یہ ان کو نفرت پھیلا رہی ہے۔ ان کا سمجھنا کیا ہے کہ یار اب دیکھیں نیوزی لینڈ کی پی ایم نے کیا کیا کہ وہ جس دن آئی تو وہ اسکارف پہن کر کے آ گئی، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے دل جیتنے کے لیے آئی، لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب ہماری مندر میں آنا ہے اور تلک لگا کے آنا، ہم جا پائیں گے؟ انہوں نے کیوں کر دیا ویسا؟ کیونکہ پہلے سے بیسنے سے لہٰذا جو چاہے کر لیں،
हम पहले से एक देश लिए था, हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए कि उन्होंने जो किया, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने जो किया अपने लिहाज से सही किया, लेकिन अगर हमसे एक्सपेक्ट कर, अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं कि जब हमारा मामला आवे तो ऐसे ही ये भी चोला बदल लें। आपको मालूम है कि एक मरतबा हमारे पीएम साहब ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, गुजरात का मामला है। तो हमारे एक लीडर से पूछा गया कि साहब पीएम साहब ने अगर टोपी पहनने से इनकार कर दिया, तो हमारे लीडर ने कहा कि पीएम ने कोई गलती नहीं किया। मुसलमान जो बेमतलब नाराज है कि टोपी क्यों नहीं पहना, मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी जब उनकी महफिल में जाता है तो तिलक नहीं लगाता है। मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे लीडर की बात को, क्या बड़ी बड़ी पॉइंट की बात की। मैं मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसी वक्त उन्होंने बात कही कि हमारे लीडर ने मेरे सामने ऐसे लगा दिया। हमने कहा क्या बात है? क्या नहीं, वो आपके लीडर ने एक बात कही, नाम नहीं बताया उन्होंने कहा आपके लीडर ने एक बात कही है कि नरेंद्र मोदी ने अगर टोपी नहीं पहनी तो कोई गलत काम नहीं, क्योंकि आप लोग भी उनकी महफिल में जाते हैं तो तिलक नहीं लगाते, तो आपकी महफिल में अगर वो टोपी ले गए तो मुसलमान क्यों नाराज हैं? तो जो लीडर ने आपने कहा आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? हमने कहा मैं 100% इख्तलाफ करता हूं। तो बात तो उन्होंने बहुत प्यारी कही है। तो हमने कहा कि मैं आपको जवाब दूंगा इस शर्त पर कि आप मेरा जवाब जिस भी चैनल से आपका ताल्लुक है उसको रिले कीजिएगा। कल उन्होंने वादा किया, हमने कहा मैं आपको बताता हूं। हमने कहा देखिए, हमारे पीएम साहब जब राजस्थान जाते हैं तो राजस्थानी बन जाते हैं, जब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीरी बन जाते हैं, जब पंजाब जाते हैं तो पंजाबी हो जाते हैं। तो जब मुसलमान की महफिल में पहुंचे तो उनको मुसलमान का चोला बदल लेना चाहिए। जब आप सब जगह चोला बदल रहे और एक जगह नहीं बदल रहे तो पार्शलिटी हो गई ना भाई। आपके मिजाज में हर जगह चोला बदलना है तो आपको यहां भी बदल लेना चाहिए चोला मुसलमान की महफिल में आकर के। हमने कहा मेरी बात सुनिए, हमने कहा मुझे बुद्धिस्ट बुला के ले जाते हैं, हम टोपी नहीं उतारते हैं। मुझे क्रिश्चियन अपनी महफिल में ले जाता है, हम टोपी नहीं उतारते हैं। मुझे हिंदू अपनी महफिल में ले जाता है, हम टोपी नहीं उतारते हैं। हमको अख्तियार है कि हम तिलक न लगावें, लेकिन पीएम साहब को चाहिए था कि पार्शलिटी न करें। वो भारत के पीएम है और सब जगह चोले बदलते हैं तो यहां भी बदल लेना चाहिए उनको। बात समझे मेरी? तो ये क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास उसूल है, हम बेसलेस इंसान नहीं है, हम बेसलेस किसी मजहब के मानने वाले नहीं। एक देश है हमारा सर्कल है, खींचा गया है कि आप इस सर्कल के आगे आजाद नहीं हैं। हम घोड़ा हैं, तस्वीर दी गई है कि घोड़े की एक रस्सी होती है, घोड़े का खूंटा यहां बंधा हुआ है, रस्सी यहां तक है। घोड़ा आजाद कितना है? जितनी रस्सी है। घोड़ा अगर ये सोचे कि नहीं मैं पूरे शहर में घूम सकता हूं, भले खूंटा पे बना रहा हूं, आप पूरे शहर में नहीं घूम सकते, आप बंधे हुए भाई साहब। ये दूसरे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हम जैसे आजाद पंछी हैं, ऐसे ये भी आजाद पंछी। हम ऐसे आजाद पंछी नहीं हैं। आप जो चाहें करने कर सकते हैं, लेकिन हम जो करना चाहें हमको एक मरतबा पहले सोचना पड़ता है हमारा अल्लाह क्या कहता है इस बारे में, हमारे रसूल ने हमको क्या गाइड किया है, हमारे सहाबा का इस पर मामूल क्या रहा है। उसके बाद हम अगला कदम क्या करते हैं, उठाते हैं। हम ऐसे आजाद लोग नहीं हैं। ये बुनियादी बातें थी जो गैर माकूल थी, जिसकी वजह से लोग नफरत करते हैं। लिहाजा मैं उनको दावत देता हूं कि अपनी गैर माकूलियत पर बैठ करके एक मरतबा संजीदगी से गौर करें और प्यार और मोहब्बत की बात करें। ये दुनिया सबके लिए है, सब आदम की औलाद है, खून का कलर सबका एक है। कलर ऊपर से चाहे काला और गोरा हो, लेकिन खून का कलर अल्लाह ने एक रखा है। लिहाजा आदम की औलाद से के लिहाज से इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। इंशाल्लाह जिंदगी में तो आगे बात करेंगे कि माकूल वजह क्या है जिसकी वजह से वो नफरत करते हैं। इंशाल्लाह उसकी पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने वालों को भी और कहने वालों को भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।